MSc third semester. We are having a class. It's good for everyone. So be attentive in my class, and we will start the introductory lecture for the mineral exploration. It's your paper second, and for RDB students, I want to tell you about this is the introductory session. Maybe you already went through in my earlier classes. So just have a look on it. Okay. Meaning of mineral and the word mineral exploration, what does it mean? Just think. I will definitely here for make you understand, but just force your mind to understand what it is. See, mineral, I taught you in your MSc second semester what is mineral, and right now I am teaching you little further than what the mineral is. Mineral, yeah, everyone knows it's a naturally occurring homogeneous substance, inorganically formed, having definite atomic structure and definite composition, definite chemical composition. This much everyone knows. So there are two kinds of mineral. One is rock forming minerals, which are available or occurrence or found abundantly in the earth crust or rock or in the surface. And other mineral type is ore forming minerals. Ore forming minerals are those which are economically valuable and we extract them at profit. They are not abundantly occur in the rocks. So I hope you have understood what the mineral is and its type. Yes, many of you can ask the question whether, sir, mercury, water, fossil fuel, are they come under mineral? Yes, they come under mineral, but they are exception. According to mineral definition, the substance should be solid. Okay, but these are the exceptions, which are mineral is actually a substance with certain terms and conditions and exceptions. Now we will go through the word exploration mean. What does exploration mean? In a simple English term, explore, that means you understand that term, you maybe you will find in the dictionary, you can understand, but in our scientific literature, the exploration meaning a complete sequence of searching a mineral deposit, prospecting them, reserve estimation, mine plan, feasibility test. There are successive stages are comes under exploration term. Okay, so I'll definitely go little elaborative way in further slides regarding exploration. So let's go further, but before that, let's get understand some basic terminology, so that since this is the introductory lecture, I will definitely discuss the basic terminology along with the syllabus and some certain important books for understand or having expertise in this subject. So what is mineral, that I already told you, made you understand what it is. It's a naturally occurring homogeneous substance, definite atomic structure and definite chemical composition and formed through inorganic processes. So many of you don't understand what is definite chemical composition. I know that. See, there are two words. One is definite, other one is fixed. There is difference. You understand, there is a plagioclase series, isomorphic mineral series, in which albite and anorthite are two end members in a series. Both are mineral, both having fixed chemical composition, but within these two series there are some other members too, and they are also minerals.
You understand? There is difference between definite chemical composition and fixed chemical composition. So you must understand this difference. Now let's understand some basic terminology for before we move towards the very into the subject. Mineral have understood rock forming minerals, ore forming minerals. Now, what the rock is? It's definitely an assemblage of minerals and minerals of different types. Okay, so there are three kinds of major rocks: igneous, sedimentary, metamorphic, and they form by the different processes. Okay, now what the ore is? Our third ore. Ore, see, before, according to earlier definition, ores are the substances or material through which any metal, one or more metal, can be extracted at a profit. That is called ore, according to earlier definition. But uh, in a recent time, according to the institution of mining and metallurgy, United Kingdom, who takes care about the institution takes care about the ore definition or terminologies. The recent definition has radically changed. According to the recent definition, according to the recent definition, not only those material through which the metals can be extracted at a profit, some other like fossil fuels, building materials, industrial non-metallic ores, these are also included under the ore category. Ore can be a single mineral or group of mineral, means aggregate of mineral. Okay, but the reverse is not possible. You must understand the difference. A ore is a only a mineral or an aggregate of mineral, but reverse is not possible. You must repeat this line and understand the meaning of what I just said. Now we come to the ore deposits. See, ore deposits are very minute as respect to the whole earth surface. It's very minute minute space where the ore deposits are present. Ore deposits relative to ore deposit size is very less, or size is very minute with respect to the whole earth surface. And that space means the ore deposits, definitely they occur in a host rock. There should be a host rock in which the ore deposits are present. So ore deposits are the concentration of components or saying minerals, economic minerals, ore minerals, metallic, non-metallic, or combination of both, present in a host rock, that is called ore deposits. Example: Rajpura Dariba, Rampura Agucha, Ledging deposit, and similar Malaysian copper deposits. Now the our fifth prime commodities. What are the prime commodities? Associated commodities and trace elements. Prime commodities are those ore minerals or ores which are we are principally extracted that mineral for. Yeah, prime commodities are the principal ore minerals recovered from the ore deposit or mines. Associated commodities are which are available along with the prime commodities. Okay, that is called associated commodities. And trace elements that are available in every ore deposits that can be
extracted through beneficiation plant. Now the proto-ore. Proto-ore, what is proto-ore? It is a either deplete in the economic rich materials, substance or metals, and later through the natural processes that deposit, that uneconomical deposit will become economic. Example, supergene sulfide deposits. Initially they are not economically enriched, but by the time weathering happens, some oxidation happens, and there are some other leaching and there are some other processes bring the changes, and the uneconomic deposits became economic deposits. That is called proto-ore. Gangue minerals and tailings. Gangue minerals are no deposits in the up to now, rarely no deposits available in any in the earth surface which don't have the gangue minerals. Gangue minerals are the worthless mineral associated with the our ore. Okay, and tailing is the waste of beneficiation plants, that is called tailing. Deleterious substance means we have to these substances can bring the not cost effective, actually we want to the undesired material, that is undesired substances that is add up to the ore, that added up to the ore. Okay, so here are some picture of the ores. These are the metallic ores, native gold and chalcopyrite, and this ruby is the gemstone, calcite and coal is the non-metallic ores. Okay, okay. So what does mean exploration? Exploration, mineral exploration is a complete sequence of activities, not a single term. Okay, it ranges between searching for a new mineral prospect, a reconnaissance survey, and evaluation of the property of economic mining feasibility study. It also includes augmentation of additional ore reserves and resources in the mine and total mining. So here for the introduction purpose, I am just giving you the brief about the exploration sequence activities. Here the major 6 stages are there in the exploration activities. We will definitely go through in detail in the further classes, but let's have some bird eye view here. Reconnaissance survey. Reconnaissance. Okay, first stage is reconnaissance. So in which we do literature survey, ore deposit model, prospecting criteria, selection of area, reconnaissance survey. Okay. So here literature survey, that means what? The earlier material, study material, whatever available during the exploration time. So this will help us to understand during the reconnaissance survey. And one more important thing is, whatever be the result or outcome of the first stage will be the input to the second stage. Okay, whatever is the output of the reconnaissance survey will be the input in the initial follow-up stage. Geological mapping, 1:50,000 scale. In a similar way, when we do in reconnaissance survey, so there the mapping will be again very small scale, like 1:250,000 scale. Okay, that would be the reconnaissance survey small scale. Okay, this is a larger scale geological ping, 1:50,000 scale geological mapping. Then geochemical survey, ground geophysics. During this initial follow-up stage, this all the activities should be performed here. Geological mapping, geochemical survey, ground geophysics, gravity, magnetic, electrical sampling, some pitting and trenching to expose the ore deposit. It's a and risk is definitely at the initial stage the
risk is very extremely high, means reconnaissance survey, and the cost is around 0.43 to the total cost of the project is applied to the reconnaissance survey. Okay. Now the initial follow up, it's a very risk is very high, and this actions is performed during the this survey. Now detail exploration, yes, one more thing, reconnaissance survey is also called G4 stage. Initial follow up, it is G4 or G3, it's between the detail exploration is G3 surveys. It is between the detail exploration, initial follow up stage is between the detail exploration and reconnaissance. And detail exploration survey geological mapping is done in 1:500 to 1:100 scale. Okay, it's again very large scale, and as we go as we move forward to the exploration stage, the scale is becoming larger and larger and larger. Okay, up to the we get the prospect. So detail exploration, so in which we do geological mapping, drilling, sampling in order to, because in this stage we delineate the ore body on the earth surface. The prospect, that means our ore body is promising ourselves that yes, it is ore body. Okay, so at that time geological mapping has performed as well at very large scale. Drilling has been done, borehole survey, borehole drilling, 3D mapping, sampling, this has been performed during the detail exploration survey. So this is risk is very high, risk is high in this stage, and the cost is 2.5% to the overall cost of the exploration program. Feasibility study means how much economical would it be, that has to be measured during this time. Mine development and construction of beneficiation plants. This is after the feasibility study, mining program will be performed, and see this all sequence, all stages, first stage to sixth stage, all comes under the exploration stages. Okay, so right now we have just seen the brief of the exploration stage, and definitely you should understand what is meaning of exploration prospects. Okay, so let's get, so difference between exploration and prospecting. So what did you understand up to now? What is exploration, what is prospecting? Is prospecting comes under exploration? Yes, definitely. Exploration is a complete sequence, successive stages of the different stages, successive stages. Yes, okay. And now prospecting is the one of the stage in exploration. Okay, so here are some prospecting criteria: stratigraphic criteria, lithologic criteria, magmatogenic criteria, tectonic criteria, structural criteria, metamorphic criteria, rock alteration criteria, paleoclimate, paleogeography, geomorphic criteria, historical criteria, geobotanical criteria. Here I know that you have understood up to 11, that different subjects name are related to these, and that makes you understand what could be the indication you can get in the field. But in the geobotanical criteria and historical criteria, what it is in the historical criteria, see, in the historical criteria what it is, you should understand this by our existence on the earth through the primitive man to up to now. Okay, primitive man means who were there about 20,000 years ago. They were present. They used stone tools to kill the animals, eat them. So from that time, the minerals and metals are humans are using from that time. And through the advent of new our civilization, our human civilization, the uses of metals and minerals are continuing and increasing. Okay, so definitely the kings
who were present before some 100 500 years ago, 500 or 1000 years ago, they definitely use the, like, definitely they use metals like gold, iron for their making their tools. So just understand the basics here. Wherever they got the deposit, they were start to extract them from there. So some historical evidences are present up to now. Many GSI scientists in the India, during their survey, they found the different indications that yes, bauxite has been extracted from here, iron has been extracted by here through heat of the rock by different methods, like any of whatever method the king was using to heat up the rocks and extract the metals from there. Such kind of activities they have performed and recorded up to now, and many of the scientists are gradually or continually finding them. That can also be used for exploration purposes, prospecting purposes. There are some there is one other technique like geobotanical criteria. So in geobotanical criteria, the trees are the main tool to identify the ore deposits in a area. There are some certain trees which are occur over the mineral deposits. They are only occur over the mineral deposit because they, whatever plant is there, that is that stands over the earth surface, and whatever be the material available beneath the earth surface, that plant uses that material for growing up, for plant grow up. Okay, so that plant inherited or include that elements, or show that yes, this kind of elements are present beneath the earth surface, that can be reflected by that plant leaves and other techniques. This is just introduction. When we will go through it in a deeper manner, definitely we'll study some name also, some trees name which are exclusively present in, like Kolar Goldfield. Some trees are present in some special trees. Some geobotanical indicators trees are present in copper mines, Malachkand. Similar kind of plants we will see. See, according to prospecting criteria, see here coal bearing Barakars, Gondwana. Okay, this region is, this formation is rich in coal. So similar formation wherever we present, definitely we will look for that deposit. Here see iron ore, Bastar, Durg, Porphyllite, Balaghat, Archean basement complex, Wadjite, copper, and manganese ore, Chhindwara, Balaghat, Jhabua, Dharwar, Sausur series. These are the stratigraphic criteria. Okay, stratigraphic criteria. This is the mineral deposit of Madhya Pradesh. Just look at these, you will understand what I want to say. What does mean prospecting criteria? Okay, you will understand. Basically, we go through the syllabus and what we will study in further classes, so that our introductory session will be complete. So it's a, see here, unit first is describing the, unit first and second is describing the geological exploration. Okay, geological exploration and ore reserve estimation. Okay, it's completely dedicated this two unit to geological exploration. Okay, see there are three types, mainly three types of exploration for ore. First is geological, second is geophysical, third is geochemical. We will study these three type of exploration methods and little bit surrounding these methods too. Okay, so here in the units third, classification and principle of geophysical methods. Okay, so geophysical method, whatever we have, we will I'll
this all material will I'll share with you. This unit 4 and 5th. Okay, so unit 4 gravity methods, it's come under the geophysical method and geochemical exploration, geochemical cycle, mobility of elements. Okay, so you just understood the what has given in the syllabus. You must have gone through this before. If you had, then it's very proud moment for everyone. Okay, so these are the books which you need to refer: Fundamentals of Geophysics by William Lowry and An Introduction to Geophysical Exploration by Philip Carrett. These two books are exclusively or widely in every institution, every prestigious institution book, they use these books. And Looking into the Earth and Mineral Exploration by Sopan Haldar. Looking into the Earth, Alan A. Musset and M. Aftab Khan. This is a wonderful book that I have ever seen. These two books, Fundamentals of Geophysics and Looking into the Earth. These two books are, although all the books are very important, but these two books are personally my favorite. These are the books for the geological exploration, geological methods in mineral exploration and mining. These 6 books are you need to refer for cover your syllabus. Hello all, today is your second lecture or mineral exploration. Okay, so after a long back we are back again. Okay, so here is your first and second unit comes under the geological exploration, and today is our topic of study is mode of occurrence of commercial grade deposit of ore. Okay, then geological criteria, ore guides for mineral prospecting, methods of geological exploratory, pits, grids, trenches, well logging and evaluation of deposits. Okay, so first we will study the mode of occurrence of commercial grade deposits of ore. So let's get started. Okay, so this is the PPT that I have made for this topic. So let's get started. So what do you understand actually by the commercial? पहले तो इसका मतलब समझते हैं कि मोड ऑफ अकरेंस ऑफ कमर्शियल ग्रेड डिपॉजिट ऑफ ओर होता क्या है. तो इसका हिंदी में मतलब कमर्शियल ग्रेड का मतलब है कि हम इंडस्ट्रियल यूज कर पाए, उसका मतलब वो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो. ओके, इकोनॉमिक हो. ओके, अब डिपॉजिट्स के अलग अलग अकरेंस के टाइप होते हैं ना, अलग अलग मोड ऑफ अकरेंस, फॉर्म्स ऑफ अकरेंस अलग अलग होते हैं. तो उनके बेसिस पे हमें ये बताना है कि कौन सा डिपॉजिट इकोनॉमिक रहेगा और कौन सा नहीं रहेगा. जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे आयरन ओर डिपॉजिट की बात की जाए तो अलग अलग तरीके के मोड ऑफ अकरेंस होते हैं इनके. जैसे जो सेडिमेंट्री अकरेंस होता है, बेंडेड आयरन फॉर्मेशन, ये सब. इनमें एक तो इनका ये जो डिपॉजिट्स होते हैं इनका साइज काफी बड़ा होता है, साथ में इनका कॉन्सेंट्रेशन मतलब जो ग्रेड होता है वो भी बहुत अच्छा होता है. तो हमारे लिए क्या है, कमर्शियल ग्रेड डिपॉजिट है. वहीं यदि हम किसी रेसिडुअल डिपॉजिट की बात करें जो इनिशियली डिस्पोज्ड होते हैं, जो इकोनॉमिकल मिनरल होते हैं रेसिडुअल डिपॉजिट में, इनिशियली पूरे होल रॉक में डिस्पोज्ड होते हैं, देन लेटर थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस दे गॉट कंसंट्रेट इन अ रॉक और whatever be the environment in which they occur. तो आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं कि मोड ऑफ अकरेंस. तो कमर्शियल ग्रेड का मतलब ये होता है कि यदि हम पूरे वर्ल्ड स्केल की बात करें, बहुत अच्छा समझना, जैसे हम पूरे वर्ल्ड स्केल की बात करें तो कोई भी मिनरल कमोडिटी और मिनरल कमोडिटी पूरे वर्ल्ड प्रोडक्शन का यदि 1% से ज्यादा है, 1%, 1% के ऊपर यदि वो डिपॉजिट कंट्रीब्यूट कर रहा है पूरे वर्ल्ड प्रोडक्शन में, दैट मीन्स दैट इज कमर्शियली इंपॉर्टेंट, दैट इज इंडस्ट्रियल ग्रेड डिपॉजिट और कमर्शियल ग्रेड डिपॉजिट. ओके, सो ये जो कमर्शियल ग्रेड डिपॉजिट है, जितने भी वर्ल्ड्स में अलग अलग मिनरल डिपॉजिट और डिपॉजिट्स हैं, इनका ये
वर्ल्ड के लिए है, लेकिन हो सकता है कि वो कंट्री के लिए वो कमर्शियल ना हो। जैसे कोई भी डिपॉजिट की बात करें, मान लो वो किसी कंट्री के लिए कमर्शियल नहीं है, लेकिन होल वर्ल्ड के लिए जो है, क्योंकि वो किसी और कंट्री में मिल रहा है ना। जैसे मान लो कि अमेरिका में कोई मिनरल मिल रहा है, अफ्रीका में मिल रहा है, चाइना में मिल रहा है, लेकिन इंडिया में नहीं मिल रहा है, तो फॉर होल कंट्री दैट वुड बी इकोनॉमिकल, बट जैसे इंडिया में नहीं मिल रहा है तो हमारे लिए अनइकोनॉमिकल है। तो यहां तक ये चीजें क्लियर हुई होगी कमर्शियल किसे कहना है। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, देखो इंडस्ट्री, अभी मैं एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ मैग्नीज डिपॉजिट का दूंगा, है ना। बाकी और भी दूसरे तरीके के डिपॉजिट्स होते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये वर्ल्ड स्केल पे जो है डिपॉजिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, जिसमें हमारा इंडिया का नंबर फर्स्ट है ना। मैग्नीज रेसिडुअल टाइप डिपॉजिट वर्ल्ड प्रोडक्शन में 70% वर्ल्ड प्रोडक्शन जो है इंडिया, घाना और ब्राजील, ये 3 जगह से होता है ना। 70% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ मैग्नीज, जिसमें जो मोड ऑफ अकरेंस ऑफ डिपॉजिट है वो है मैग्नीज बियरिंग रॉक्स और पुअर मिनरल डिपॉजिट, है ना। कवर ऑफ मैग्नीज बियरिंग रॉक्स और पुअर मैग्नीज डिपॉजिट्स। इकोनॉमिक मिनरल जो उनमें पाए जाते हैं सिलोमिलियन है, पायरोलोसाइट है, मैंगानाइट है। ठीक है, और इसमें मेटल कंटेंट है ट्रीटमेंट के बाद 40 to 50%। देखो ये जो सीक्वेंस जमा हुआ है अप टू डाउन, ये जो कमर्शियल डिपॉजिट्स जो है उनके बेसिस पर ही, जो सबसे ऊपर रहेगा वो सबसे ज्यादा कमर्शियल है ना। तो इसी तरीके से वर्ल्ड प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 पे है, घाना ब्राजील ये मैग्नीज प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है। उसी तरीके से ये मैग्नीज डिपॉजिट तो ये हुआ, है ना, ये ऑकरेंस हो गया। जैसे सेडिमेंट्री फॉर्मेशन में यदि मैग्नीज डिपॉजिट रहता है तो बेड्स एंड लेंसेज में पाया जाता है। सो दिस मोड ऑफ फॉर्मेशन इज नॉट दैट मच इकोनॉमिकल लाइक द अदर अर्लियर cover of manganese bearing rocks or poor formation. That deposit is much more commercially economically feasible actually for the manganese production. In a similar way, here the industrial manganese deposit, ये सारे industrial manganese deposits हैं। इसी तरीके से जो दूसरे जो जैसे डिपॉजिट आयरन का है, तो देखो आयरन डिपॉजिट में क्या है, ये मेटामॉर्फोजेनिक बेड्स, इसमें 50 to 60% मेटल कंटेंट मिल रहा है। ये बेड्स के फॉर्म में मिलता है। मोड ऑफ अकरेंस का ये है। देखो क्रूवोई, रोग, कुर्स्क, लेक सुपीरियर, नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, ये यहाँ पे ये वर्ल्ड इकोनॉमिकल डिपॉजिट मतलब कॉमर्शियल डिपॉजिट है वर्ल्ड लेवल पे, है ना। तो हमें इसका मोड ऑफ अकरेंस ये बेड्स में है। और जैसे अब यदि हम इंडिया की बात करें, ठीक है, वो इंडिया में तो प्रोडक्टिव है ही, लेकिन क्या वो वर्ल्ड में कमर्शियल है? नहीं है ना। वो इंडिया के लिए तो जरूर कमर्शियल हो सकता है। जैसे छत्तीसगढ़ में जो है बेलाडीला माइंस, है ना, तो वो कमर्शियल हो सकता है। ये देखो, ठीक है, बेलाडीला आयरन ओर, ठीक है। इसी तरीके से क्रोमाइट डिपॉजिट है, ये मैग्मेटिक सेग्रीगेशन में है। जैसे अपना ये बुशवेल्ड है ना, साउथ अफ्रीका, ग्रेट डाइक। तो देखो यहाँ पे एक चीज समझो, जो क्रोमाइट अपने इंडिया में कहाँ मिलता है? सिकिंदा में, उड़ीसा, है ना, उड़ीसा झारखंड यहीं पे है क्रोमाइट डिपॉजिट, क्रोमियम डिपॉजिट, है ना, मैग्मेटिक सेग्रीगेशन। बट दैट इज नॉट वर्ल्ड्स इकोनॉमिकल, वर्ल्ड्स कमर्शियल डिपॉजिट। फॉर इंडियन पर्पस दैट इज, फॉर नेशनल लेवल इट इज कमर्शियल, बट फॉर इंटरनेशनल लेवल दैट इज नॉट कमर्शियल। देखो इंडस्ट्रियल निकल डिपॉजिट। अब देखो ये जो जितने भी डिपॉजिट्स के टाइप्स हैं, जैसे मैग्मेटिक सेग्रीगेशन, लिक्विड मैग्मेटिक, रेसिडुअल, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। जो ओर जियोलॉजी है उसमें पढ़ना होगा ना, कौन सा कमर्शियल होगा, कौन सा नहीं होगा, वर्ल्ड लेवल पे कौन सा है और नेशनल लेवल पे कौन सा है। तो मोड ऑफ अकरेंस ऑफ कमर्शियल ग्रेड ऑफ डिपॉजिट्स, तो ये यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर होगी। तो ये है ना, सारे तुम्हें पीपीटीज जो है इसमें बता नहीं सकता हूँ, बहुत सारे मिनरल्स हैं।
देखो इंडस्ट्रियल कॉपर डिपॉजिट्स, लेड एंड जिंक डिपॉजिट्स, ये सारे को आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, इसको पढ़ लेना अच्छे से, और सारे टाइप टेलीथर्मल, इंटीग्रेटेड, हाइड्रोथर्मल एक्सेसरी एलिमेंट्स, ये सारा कुछ पढ़ लेना। रेसिडुअल सेडिमेंट्री, एल्यूमिनियम डिपॉजिट, रेसिडुअल है, सेडिमेंट्री है, सेडिमेंट्री है, इसमें देखो फॉर्म अलग होगा इनका, ठीक है, कौन सा मिनरल इसमें मिलता है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। गोल्ड डिपॉजिट्स, नेटिव मेटल्स की बात चल रही है, और जो भी दूसरा मेटल, जैसे यहाँ पे ये रेयर अर्थ एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बात चल रही है, यूरेनियम एंड थोरियम डिपॉजिट्स, तो यहाँ पे देखो क्या है, विथ वाटर स्टैंड, यहाँ पर कंटेंट है U3O8 यूरानिनाइट का 0.02 to 0.5%। तो इस तरीके से जो है सब कुछ देखा जाता है, कंटेंट कितना है, कौन सा फॉर्म है और कहाँ मिलता है, इसके बेसिस पर डिसाइड करते हैं। ये काफ़ी वाइड टॉपिक है, इसको इतने शॉर्ट में अपन लोग नहीं कवर कर सकते, बाकी जो भी इंटरेस्टेड है स्लाइड्स को अच्छे से पढ़ें स्क्रीनशॉट लेकर के। स्कार्न डिपॉजिट, मैग्मेटिक प्लेजर क्या होता है ये, तो यहाँ तक के तो सभी को क्लियर होगी चीज़ें। अभी फिर देखो इसमें एक चीज़ और होती है कि क्वालिटी ऑफ दिस ओर्स, ओके, दिस इकोनॉमिक मिनरल्स, ये भी चेंज होते रहती है टाइम टू टाइम, है ना। जैसे कोई माइन है, अब माइन से एक तो कॉस्ट, किस कॉस्ट से हम ओर निकाल रहे हैं, फिर उसमें 1 टन ओर को यदि हम प्लांट में यदि उसे प्रोसेस करते हैं तो मेटल कंटेंट निकालने में कितना कॉस्ट आता है, देन उस मेटल को फिर ट्रांसपोर्ट करके यदि ले जाना है तो उसमें क्या कॉस्ट आ रहा है, ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम वेरी करती है। तो इनके बेसिस पर भी, चूंकि हमें कोई भी मेटल या मिनरल ये इकोनॉमिकली हमें अचीव करना है, ठीक है, एक्वायर करना है, इकोनॉमिकली अचीव करना है। यदि हमें 2 रुपए का भी यदि अंतर मिल रहा है, दैट मीन्स वी विल गो फॉर द चीपेस्ट वन, ओके, दैट वुड बी इकोनॉमिकल फॉर अस। देखो इसका एक एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो कि बहुत ही हाई ग्रेड ओर है जो कि अनएक्सेसिबल एरिया में है, और वहीं पर कहीं पुअर ग्रेड ओर यदि अवेलेबल है और वो किसी रेलवे स्टेशन के पास में है या पोर्ट के पास में है या एयरपोर्ट के पास में है, तो हमारे लिए जो इकोनॉमिकल रहेगा, जैसे हम मान लो कि ट्रांसपोर्ट करके जो अनएक्सेसिबल एरिया से यदि हम ट्रांसपोर्ट करके लेके आते हैं, जबकि वहीं पे हम पुअर ग्रेड ओर को बहुत अच्छे तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इकोनॉमिकली, जो कि हमें ट्रांसपोर्ट किए गए ओर से चीप होगा, तो हम जो अनएक्सेसिबल एरिया है वहाँ के ओर को, हाई ग्रेड ओर को नहीं निकालते हुए, जो हमें पुअर ग्रेड ओर है अभी अवेलेबल, जो हमें चीप मिलेगा, हम उसे यूज़ करेंगे, ओके। यहाँ तक आई थिंक सभी को क्लियर होगा। देखो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसपे भी जो डिपॉजिट इकोनॉमिक होगा या कॉमर्शियल होगा, इंडस्ट्रियल होगा, ये डिपेंड करता है। जैसे मैं बात करूं कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल दिया कि जो यदि नियरेस्ट टू पोर्ट यदि डिपॉजिट रहेगा तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, है ना। पहली बात तो ये मैं बता दूं कि किसी भी ओर डिपॉजिट में जो ओर का वैल्यू होता है ना, उसका लगभग 25 से 30% पोर्शन हम ट्रांसपोर्ट में दे सकते हैं। 25 से 30% से ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि वो फिर इकोनॉमिकल नहीं रहेगा। जो भी ओर वैल्यू का 25 से 30%, है ना। और उस डिपॉजिट की, वो डिपॉजिट के बारे में एक्सप्लोर करते टाइम, एक्सप्लोरेशन स्टेज में, है ना, रीजनल प्रोस्पेक्टिंग स्टेज में, द रेडियस ऑफ इकोनॉमिक माइनिंग, है ना, ये टर्म याद रखना, द रेडियस ऑफ इकोनॉमिक माइनिंग, ये कैलकुलेट कर लिया जाता है। ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो ये कैलकुलेट करने का सीधा सा तरीका है, ये माइन है ना, ये जो है ये माइन है, ठीक है। यहाँ पर मान लो कि एंथ्रासाइट कोल, है ना, एंथ्रासाइट, ये ट्रक है, एंथ्रासाइट कोल है, एंथ्रासाइट कोल मान लो कि ये
माइन से जस्ट निकल के यहाँ पे चलो बहुत ही चीप बता देता हूँ मैं ताकि सभी लोगों को समझ में आए। मान लो 50 रुपये है, ठीक है। यहाँ पे ये पोर्ट है, जहाँ पे मतलब ये पोर्ट कुछ भी हो सकता है, चाहे एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो या रेलवे स्टेशन हो, कुछ भी हो सकता है ना। फिर ये जो 50 रुपये का जो यहाँ पर अंतर साइड है, ये यहाँ तक आधे तक के है ना, ये यहाँ तक आधे तक ये हो जाएगा 100 रुपये है ना। 50 रुपये का अंतर साइड 100 रुपये का हो गया। तो हमें जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितना लगा, 50 रुपये है ना। तो अभी कितना टोटल है, 100 रुपये का यहाँ पे हो गया ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अभी देखो कि ओके, चलो यहाँ पे ये समझ लो बाय रोड जा रहे हैं अपन है ना। तो जो भी जहाँ तक भी पहुँचाना है अपने को और, तो हमें अच्छा शुरू से इसको समझते हैं। देखो ये माइन है, यहाँ से ये अपना और यहाँ पे ट्रक में है, ट्रक से बाय रोड ये जाएगा। तो जब ये ट्रक माइन के पास में होता है, मान लो इस ट्रक का जो मतलब कोई भी मिनरल ओर है, मान लो चलो हम एंथ्रासाइट लेते हैं, एंथ्रासाइट है तो इसका कॉस्ट मान लो कि बहुत ही चीप मैं बता रहा हूँ 50 रुपये है ना। अब जब ये अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा बाय रोड है ना, ये अपने डेस्टिनेशन में पहुंच रहा है बाय रोड, तो इसका रेट हो जाता है 100, मतलब 50 रुपये हमारा जो है इसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लग गया है ना। तो अभी देखो टोटल जो चार्जेस है 100 रुपये लगा अपने को, 50 रुपये तो कोल का है, 50 रुपये ट्रांसपोर्टेशन का है। तो अब ये समझ लो कि डिस्टेंस जो है 100 किलोमीटर है ना, 100 किलोमीटर है, ये हमारे लिए इकोनॉमिकल है, ठीक है। अभी देखो कि यदि मान लो हमारे पास रोड नहीं रहती, हमारे पास में ट्रेन होता सिर्फ है ना, हमारे पास में सिर्फ ट्रेन होता। तो अभी ये जो आइटम है इसे हम जो है ट्रेन के थ्रू अपने डेस्टिनेशन में पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। ट्रेन के थ्रू अपने डेस्टिनेशन में पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ से ट्रेन जा रही है ना, ट्रेन पूरे डेस्टिनेशन है अपना, ये डेस्टिनेशन है ना। तो उसमें चूंकि ट्रेन में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कम है, यहाँ पे 50 लग रहा था, यहाँ पे 20 है, तो हमारा रेडियस ऑफ इकोनॉमिक माइनिंग है ना, जिसको हम कहते हैं द रेडियस ऑफ इकोनॉमिक माइनिंग, अब हो जाएगी 250। कैसे हुई 250? 50 रुपए में 100 किलोमीटर चल रहा था, ठीक है। अभी 20 रुपए में 100 किलोमीटर चल रहा है, तो 40 रुपए में 200 और 50 रुपए में 250 किलोमीटर इसका इस ओर डिपॉजिट का रेडियस ऑफ इकोनॉमिक माइनिंग हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी डिपॉजिट इकोनॉमिक होता है और अनइकोनॉमिक होता है, ठीक है। तो कैसे कमर्शियल होगा कैसे नहीं होगा, ये इसके बारे में हमने काफ़ी अच्छे से बातें की, ठीक है। अभी ठीक है, अब जितना भी समझ में अच्छी बात है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जियोलॉजिकल क्राइटेरिया एंड ओर गाइड्स फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन। ओके देन, ऑल द बेस्ट, जितना भी आपको समझ में आया होगा इसमें। बाकी आपको ही समझना है जो टाइप ऑफ डिपॉजिट्स हैं। ये देखो, ये जितना भी है हायरार्की है, समझ लो पूरा वर्ल्ड मेजर ओर डिपॉजिट्स की। और इसमें आप कंट्री लेवल की भी हायरार्की चेक कर सकते हैं। यदि कोई यहाँ पे है और ऊपर से लेकर फर्स्ट टाइम यहाँ पर है, तो वो डेफिनेटली फर्स्ट नंबर पे रहेगा उस डिपॉजिट्स के लिए, ठीक है। वो कमर्शियल डिपॉजिट होगा उस कंट्री के लिए, है ना। जैसे मैं बताऊँ, जैसे इंडिया में बताऊँ, यहाँ पे कौन सा है, यूरेनियम थोरियम, मेटासोमेटिक पेगमेटाइट्स बहुत मिलते हैं। आप ये उड़ीसा तरफ जानते होंगे यूरेनाइट, ठीक है। तो ये हमारा कमर्शियल गेट डिपॉजिट में आ जाता है, ठीक है। ये पूरी हायरार्की है कंट्री वाइज वर्ल्ड स्केल पे, ठीक है। इंडिया हमारा इस नंबर पे है, तो ये वाला हमारे लिए कंट्री लेवल पे हमारा कमर्शियल डिपॉजिट हो गया, ठीक है। ये नेक्स्ट साइड द पेरिफेरी ऑफ द क्वार्ट्ज कोर, जियोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिंग क्राइटेरिया है ना। और चूंकि प्रोस्पेक्टिंग जो टर्म है उसके अंदर जियोलॉजी की स्टडी भी आ जाती है, जियोलॉजी की फील्ड स्टडी, राइट।
जियोलॉजी, जियोफिजिक्स एंड जियोकेमिस्ट्री, इन तीनों की फील्ड स्टडी प्लस लेबोरेटरी स्टडीज, ये सब मिला के एक कॉन्सेंट्रेट है ना, वर्केबल मिनरल कॉन्सेंट्रेशन की तरफ देखा जाता है। तो इसमें देखो, यदि प्रोस्पेक्टिंग की बात करेंगे हम, तो क्या जैसे पूरा इंडिया है, पूरा इंडिया, तो क्या हर जगह हम जो है ड्रिलिंग कर सकते हैं? यदि हमें प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग करनी है ना, संभावित एरिया में जो है जहाँ पर हमें एक्सपेक्टेड है कि मिनरल डिपॉजिट मिलेगा, हमें वही तो करना पड़ेगा ना, जहाँ पे चांसेस है, वेयर द mineral resources are expected, highly expected, so we can invest our money there, time there, सारी चीज़ें पॉइंटलेस हो जाएगी यदि हम होल इंडिया में ड्रिलिंग करने लगेंगे। तो हमें संभावित एरिया जो है वो चूज करना पड़ता है कि किन एरियाज में जाना चाहिए। तो उसके बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, उन्हीं को आज हमें स्टडी करनी है, ठीक है। इसमें अलग अलग डिसिप्लिन होते हैं कि किस डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग हम क्राइटेरिया डिसाइड करें। जैसे स्ट्रेटिग्राफी से रिलेटेड हो गया, लिथोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल हो गया, टेक्टोनिक्स भी आता है, मैग्मेटोजेनिक, मैग्मा के बेसिस पे, पेट्रोग्राफी ऑफ इग्नियस मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, इसके बेसिस पर भी क्राइटेरिया डिसाइड किए जाते हैं। जियोमॉर्फिक क्राइटेरिया, दिस ऑल आर द डिफरेंट डिसिप्लिन एंड अलग अलग क्राइटेरियाज है। ओके, तो स्ट्रेटिग्राफिकल क्राइटेरिया में देखो क्या है कि स्ट्रेटिग्राफिक क्राइटेरिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कोई भी मिनरल डिपॉजिट जो कि स्ट्रेटिव फॉर्म में, मतलब स्ट्रेटिग्राफिक हॉरिजॉन में मिलता है, पैलेंटियोलॉजिक या स्ट्रेटिग्राफिक हॉरिजॉन में मिलता है, वहां पे हमें स्ट्रेटिग्राफिक क्राइटेरिया की जरूरत पड़ती है। जैसे हम कोल की बात कर सकते हैं, या सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स की बात कर सकते हैं, या हाइपोजिन डिपॉजिट्स, जैसे जो डायरेक्ट मैग्मा से बनते हैं ना, हाइपोजिन डिपॉजिट जानते होंगे। एक जो होता है इंटरनल प्रोसेस से बनता है हाइपोजिन प्रोसेसेस, एक होता है सुपरजिन प्रोसेस जो कि सरफेस पर बनता है ना, तो वो आप अच्छे से जानते होंगे। हाइपोजिन डिपॉजिट जैसे क्रोमाइट डिपॉजिट, बुशवेल्ड कॉम्प्लेक्स, लेयर बाय लेयर, तो ये जो लेयर बाय लेयर मिलने वाले डिपॉजिट जो है स्ट्रेटिग्राफिक क्राइटेरिया के अंदर में आते हैं। इस क्राइटेरिया में ये होता है, या तो कुछ उसका आउटक्रॉप अवेलेबल हो सरफेस पे, जो भी मिनरल है, मिनरल कमोडिटी है, जो भी उसका आउटक्रॉप सरफेस में अवेलेबल हो, देन डिटेल मैपिंग के थ्रू हम उसे फॉलो करते करते जो है उसे ट्रेस करते करते आगे तक जाए, है ना, अलोंग द स्ट्राइक हम उसको फॉलो करते करते डिटेल मैपिंग करते हुए स्ट्राइक के पैरेलल आगे तक जाए और सर्च करें। अब जरूरी नहीं है कि वहां पे हमें मिले ही, लेकिन हाँ, वो एरिया बैरन भी हो सकता है या वहां पे वो हमारे लिए इकोनॉमिकल भी हो सकता है, बट पॉसिबिलिटी ज्यादा है। स्ट्रेटिग्राफी या तो उसका आउटक्रॉप कुछ अवेलेबल हो कहीं पर, तो जिसे हम फॉलो करते करते अलोंग द स्ट्राइक हम जा पाए। और इसमें ठीक है, इसका जो डायग्राम यदि हम देखें, देखो यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे देखो, ये कोल रिजर्व है, आयरन रिजर्व है, कॉपर है, लेड जिंक है, ये फॉस्फेट्स है। तो सारे रिजर्व्स जो है देखो टाइम के साथ में कैसे वेरी हुए हैं, एक पर्टिकुलर स्ट्रेटिग्राफिक टाइम में सारा कुछ मिल रहा है। ये जैसे कोल रिजर्व है तो देखो ईओसीन में मिल रहा है, ओलिगोसीन में मिल रहा है, वर्ल्ड स्केल की बात चल रही है, पैलियोसीन में मिल रहा है, पर्मियन में भी मिल रहा है, हमारे इंडिया में भी मिलता है पर्मियन में, है ना। तो यहाँ पे देखो ये अलग अलग स्केल पे हमें मिलते हैं। तो हमें इन एज की रॉक्स में हमें ये ढूंढना चाहिए कि स्ट्रेटिग्राफी के अकॉर्डिंग ढूंढना चाहिए, है ना। जैसे हमें पता है कि जैसे सॉसर सीरीज में मिलती है, हमें मैंगनीज मिलता है, तो हमें मैंगनीज जो भी लोकेट करना है तो उस एज की रॉक्स में या उस टाइप में सर्च करना चाहिए। तो स्ट्रेटिग्राफिक क्राइटेरिया आई थिंक क्लियर होगा यहाँ तक। तो
सभी को। ओके, लिथोलॉजिक क्राइटेरिया है ना। इसमें क्या होता है, देखो रॉक के कंपोजिशन के बेसिस पर, मतलब जो उसका क्लासिफिकेशन हम करते हैं लिथोलॉजी कि उसके बेसिस पर इसको क्लासिफाई किया जाता है। जैसे देखो अल्ट्रामेफिक रॉक्स, ये डूनाइट, पेरिडोटाइट, पायरोक्सिनाइट्स, इनमें क्रोमाइट और निकेल। तो हम अल्ट्रामेफिक रॉक्स को जहाँ पर भी सर्च करते हैं तो वहाँ पे हमें क्रोमाइट और निकेल मिलने के चांसेस ये ज़्यादा हो जाता है। उसी तरीके से मैफिक रॉक्स में जो टाइप्स है मैफिक रॉक्स के, वहाँ पर कॉपर, प्लेटिनम, इरिडियम, ऑस्मियम, निकेल, मैग्नेटाइट, रेयर अर्थ एलिमेंट, डायमंड, ये सब मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फेल्सिक रॉक और मैफिक रॉक में भी यही कॉपर गोल्ड है ना। ये तो सिर्फ यहाँ पर जो है इतनी जो रॉक्स यहाँ पे नाम मेंशन है, इसके अलावा भी इस कैटेगरी की जो भी रॉक्स आती है उसमें सारा कुछ ये मिल जाएगा। इस कैटेगरी की जो रॉक्स आएगी उसमें सारा कुछ ये मिल जाएगी, यूरेनियम रोल टाइप, कॉपर डिपॉजिट्स, टीन, टंगस्टन, मरकरी। फिर यहाँ पे अदर्स में आ जाएगा, अदर्स में लाइमस्टोन, सिस्ट, ब्लैक शेल। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं लिथोलॉजिक क्राइटेरिया। लिथोलॉजी का मतलब आप जानते हैं ना। देखो अभी स्ट्रक्चरल क्राइटेरिया, इसमें ये समझ लो, देखो ये वर्ल्ड मैप है ना, ये ये वर्ल्ड मैप है। इस वर्ल्ड मैप में यहाँ पे कन्वर्जेंट बाउंड्रीज है, ये कन्वर्जेंट बाउंड्रीज है यहाँ पर। इसी तरीके से डाइवर्जेंट बाउंड्रीज भी होती है और ट्रांसफर बाउंड्रीज भी होती है, जहाँ पर कि प्लेट्स, कन्वर्जेंट बाउंड्री में प्लेट्स जो है एक दूसरे की तरफ मूव होती है और जो डेंसर प्लेट्स होती है वो सबडक्ट हो जाती है। डाइवर्जेंट में अपोजिट मूवमेंट टू द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम इच अदर, और ट्रांसफर में एक दूसरे के अगेंस्ट में जाती है। अभी देखो एक दूसरे के मतलब वन पास्ट टू अदर। अभी देखो जो स्ट्रक्चरल क्राइटेरिया में मेनली जो ये तो लार्ज स्केल में हो जाता है ना, जो टेक्टोनिक क्राइटेरिया, मतलब टेक्टोनिक क्राइटेरिया के अंदर में आ जाती है सारी चीज़ें। तो और भी जो दूसरे स्ट्रक्चर्स बनते हैं इसी के पैरेलल में है, तो उनको मेनली दो पार्ट्स में, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, डिस्कॉर्डेंट स्ट्रक्चर एंड कंकॉर्डेंट स्ट्रक्चर। डिस्कॉर्डेंट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, जो बेडिंग प्लेन्स के अगेंस्ट चलते हैं ना, कंकॉर्डेंट जो पैरेलल चलते हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे कंकॉर्डेंट स्ट्रक्चर है, सैडल रिप्स होती है, जो फोल्ड्स होते हैं इस तरीके से, तो फोल्ड में इस तरीके से डिपॉजिट होता है ना, यहाँ पे सैडल रिप्स में, यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं, यहाँ पे इस एरिया में, इस एरिया में यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं सैडल रिप्स। सैडल रिप बैंडिको गोल्ड डिपॉजिट इस तरीके का है, फ्लेक्सुरल एंड एसोसिएटेड फ्रैक्चर्स, इंटर इंटरस्ट्रेटल ग्लाइडिंग जावा ग्रुप ऑफ मिनरल्स में होता है। फिर ये है फेवरेबल बैड्स मूवमेंट्स ऑफ फ्लूइड थ्रू केमिकली रिएक्टिव रॉक्स, मिसिसिपी वैली टाइप ऑफ लेडजिंग डिपॉजिट्स। ठीक है, ये डिस्कॉर्डेंट स्ट्रक्चर, रीजनल फ्रेंच फॉल्स और रीजनल ब्रिटल फ्रैक्चर्स, कैलिफोर्निया है। और फिर ऑरिजिनल गोल्ड डिपॉजिट, सीयर एंड सीयर जॉइंट। तो इस तरीके के स्ट्रक्चरल क्राइटेरियाज होते हैं जिसके बेसिस पर भी प्रोस्पेक्टिंग की जाती है। अब उसी में देखो जो हम लार्ज स्केल में बात कर रहे थे, तो वहाँ पर किस तरीके के डिपॉजिट्स होते हैं। तो देखो यहाँ पे साइप्रस टाइप है, साइप्रस टाइप इन मिलेंज है ना, ये जो टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई है यहाँ पे, सबडक्शन जो हुआ है, तो ये एक्रेशनरी रिफ यहाँ पे बन गई है, जिससे जहाँ पर साइप्रस टाइप इन मिलेंज है ना। मिलेंज क्या होता है, काफी ब्लैक कलर का यहाँ पे होता है, ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, हिमालय में है। साइप्रस टाइप ओशियन रिज ट्रेंच है ना, ये ट्रेंच है। आउटर आर्क, इंटर आर्क थ्रू, तो यहाँ पे हमारा मेन काम है जो साइप्रस टाइप डिपॉजिट है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे सब बनते हैं, साइप्रस टाइप इन मिलेंज, पैसी टाइप डिपॉजिट यहाँ पे बनता है आर्क के बाजू में, पर्फरी कॉपर, पुरोको टाइप डिपॉजिट यहाँ पे, ये सल्फर आयरन है ना, सीरियल ऑर्गेनिक कस्ट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनते रहते हैं। ठीक है, मतलब ये
क्राइटेरियाज है कि आइलैंड आर्क के आसपास ही मिलेगा, टेक्टोनिक सबडक्शन हुआ है तो यहाँ पे इस तरीके का मिलना चाहिए। तो ये क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कॉपर जिंक डिपॉजिट ऑफ बस्सी टाइप, ये बेसी टाइप जो डिपॉजिट है यहाँ पे कॉपर एंड जिंक ये सब यहाँ पे मिलेगा, क्लियर है। इसी तरीके से कुरुको टाइप में, ये कुरुको टाइप है, यहाँ पे लेड जिंक डिपॉजिट कॉपर मिलेगा, ठीक है। फिर ये 15 पॉइंट यहाँ पे भी मेंशन है, वहाँ पे मिलेगा नेटिव सल्फर एंड पायरेट डिपॉजिट। तो ये सारी चीज़ें जो है इसको बैठ के अच्छे से देखो, तो ये क्राइटेरियाज है कि हमें कोई मिनरल यदि कोई मेटल या कोई एलिमेंट या कोई मिनरल और डिपॉजिट कुछ भी सर्च करना है तो इन क्राइटेरियाज के बेसिस पे हम सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा सभी को। करो अगला क्राइटेरिया है कॉन्कॉर्डेंट स्ट्रक्चर स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। फिर मैग्मेटोजेनिक क्राइटेरिया है ना, इसमें मैग्मेटोजेनिक में क्या हो रहा है सोचो जरा। देखो मैग्मेटोजेनिक क्राइटेरिया में यह है कि मैग्मा टाइप्स जो भी अवेलेबल है उन मैग्मा टाइप्स में सर्टेन एलिमेंट्स, ठीक है, जो रिक्वायर्ड एलिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे थोलेटिक मैग्मा के कितने सारे टाइप्स हैं, तो थोलेटिक मैग्माज में हमें कॉपर, निकल, प्लेटिनम, इरिडियम, ऑस्मिडियम, है ना, टाइटेनियम, आयरन, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। फिर कैल्कलाइन मैग्माज में कॉपर, गोल्ड, मोलिब्डेनम, टीन, टंगस्टन, ये सब मिलता है। देन एसिडिक मैग्मा की बारी आती है, किम्बरलिटिक, लैम्प्रोफायर, इनमें डायमंड मिलता है। तो इसी तरीके से मैग्मेटोजेनिक क्राइटेरिया के थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि हाँ इस एरिया में ये मेटल मिले। देखो सब क्राइटेरिया का अपना अपना रोल है, सारे क्राइटेरियाज को कंबाइन करके देखा जाता है कि हाँ मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि ये मिनरल या ये यहाँ पे मिनरल कमोडिटी मिलने के चांसेस ज़्यादा है। तो यहाँ तक के आई थिंक सब कुछ क्लियर होगा। अभी जो है जियोमॉर्फिक क्राइटेरिया, जियोमॉर्फिक नहीं देखते कौन सा है। देखो जियोमॉर्फिक क्राइटेरिया भी देख ही लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जियोमॉर्फोलॉजी जो अर्थ के शेप, अर्थ सरफेस का जो शेप है उससे हम क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना, ये क्राइटेरिया हमारा बन सकता है। जिसमें जैसे जो रेजिस्टेंट हिल्स होती है, क्योंकि क्वार्ट्ज जो है मोस्ट स्टेबल मिनरल होता है, मोस्ट स्टेबल, यस डेफिनेटली अर्थ सरफेस सबसे ज़्यादा वही मिलता है। तो इसकी जो रिफ्स होती है मोस्ट रेजिस्टेंट जो कि बची हुई रहती है, उसके आसपास के सारे जो मिनरल्स होते हैं ये सब एरड हो जाते हैं। ये क्राइटेरिया होता है जिससे कि मिनरल डिपॉजिट पाया जा सकता है। देखो मिनरल डिपॉजिट ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेटल्स का ही हो, नॉन मेटालिक भी होते हैं। नॉन मेटालिक भी होते हैं। फिर रीजनल फॉल्ट स्कार्प्स है, एरोडेड वैलीज, ये सारी चीज़ें होती है, स्ट्रक्चरल पैटर्न थ्रू ड्रेनेज और अदरवाइज, तो ये सब चीज़ें भी होता है ना, तो देख लेना इसको, ये सब जियोमॉर्फिक क्राइटेरिया में ही आता है। पैलियो जियोग्राफिकल क्राइटेरिया, पैलियो जियोग्राफिकल क्राइटेरिया में देखो जो इन्वायरमेंट होता है, जिस इन्वायरमेंट में, जैसे सेल्फ होता है ना, सेल्फ में क्या होता है मोस्टली, शेल्फ मतलब वो एरिया होता है किसी भी रिवर का या ओशियन का जहाँ पर कि शैलो इन्वायरमेंट होता है, जहाँ पर कि चीज़ें डिपॉजिट हो जाती है। जैसे डिपॉजिट होने के बाद में वहाँ पे वो काफ़ी समय तक के रहते भी हैं और वो इन्वायरमेंट डेवलप हो जाता है। अब सर्च कर लो लैगून, तो उन ये सारे एरियाज में ये क्या है क्या हो, बाकी इनमें जो डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, यदि सेल्फ इन्वायरमेंट है तो उसमें पेट्रोलियम, कोल, फॉस्फोराइट ये पाया जाता है। लैगून में आयरन, यूरेनियम, लेड, ये कॉपर, लैगूनल ब्लैक शेल्स, ये सब। डीप सी में मैग्नीज नोड्यूल्स, कोबाल्ट, निकिल, मैग्नीज नोड्यूल्स, ये सब चीज़ें मिल जा सकती हैं। कोबाल्ट इन मैग्नीज नोड्यूल्स, ओके। कॉन्टिनेंटल हाई में बॉक्साइट,
ठीक है, डिफरेंट इन्वायरमेंट है, ये सी का कहना चाहिए, सी के ही है। तो पैलियो ज्योग्राफिक कंडीशन के बेसिस पर भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, ये सारा जो ना फोटोसिंथेसिस, तो इसके बेसिस पर भी किस इन्वायरमेंट में कौन सा मिलेगा ये देखना है बस, क्या है? पैलियो क्लाइमेटिक, पैलियो क्लाइमेटिक में वही है, जैसे यहाँ पे इन्वायरमेंट में आ रहा था, यहाँ पर इन्वायरमेंट सेल्फ लैगून और ये क्या क्या आ रहा था। ये पैलियो क्लाइमेट में जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट होती है, एरिड क्लाइमेट होती है ना, अर्थ सरफेस में, मतलब अर्थ में एरिड क्लाइमेट होती है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट होती है। दोनों जगह के इन्वायरमेंट के बेसिस पर डिफरेंट तरीके के मिनरल डिपॉजिट पाए जाते हैं। ये इसका यदि एग्जांपल होता है तो मैं पीपीटी में डालता हूँ। ओके, सो पैलियो क्लाइमेटिक क्राइटेरिया में देखो टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट है ना, लैगून, शेल्फ, डीप सी। इनमें एरिड क्लाइमेट में बिटुमिनस शेल्स मिलेगा, सिलिशियस सेडिमेंट, डोलोमाइट, सिलिशियस सेडिमेंट, ये सब इन्वायरमेंट में मिलते हैं। इनके पैरेलल में देखो ये पैलियो क्लाइमेटिक क्राइटेरिया के अंदर में आता है ना। तो हम इन तरीके के, इस तरीके के डिपॉजिट्स को इन क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्च कर सकते हैं, पैलियो क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला आता है जियोबॉटनिकल क्राइटेरिया। ये मैंने इससे पहले ही बताया है कि जो वेजिटेशन होती है ना, किसी भी एरिया की, वो सरफेस पर खड़ी होती है, सरफेस के नीचे जो भी कंसील्ड ओ डिपॉजिट्स है वहां से एलिमेंट्स जो होते हैं वो इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं पेड़ों में, है ना, जो वहां पर वेजिटेशन है उनमें इनकॉर्पोरेट होते जाते हैं, और उसके कारण बहुत सारी डिफॉर्मिटीज उन पेड़ों में आती है, या कुछ स्पेशल सिग्नेचर्स जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे कि हम कंसील्ड ओ डिपॉजिट का पता लगा सकते हैं, है ना। क्योंकि इनकी जड़ें जो है काफ़ी 10, 12, 15 मीटर तक जाती है, और वहाँ से डेटा लेके आती है ऊपर, है ना। और अलग अलग रीजन की वेजिटेशंस का रूट डेप्थ अलग अलग होता है। यदि एरिड रीजन में जाया जाए तो वहाँ पर चूँकि वाटर डिफिशिएंट एरिया होता है, वहाँ पर जो ट्रीज होते हैं उनका रूट काफ़ी डीप तक जाता है। तो डिपेंड करता है किस एरिया में है ना, ये भी सब डिपेंड करता है। उसके साथ में कुछ पर्टिकुलर ट्रीज होते हैं जो कि स्पेशल सिग्नेचर शो करते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ इंडिकेटर प्लांट्स दे के रखे हुए हैं। ये सब इंडिकेटर प्लांट्स हैं। इंडिकेटर प्लांट्स है सारे। जैसे कॉपर के लिए है तो पॉलीकार्पिया स्पिरोस्टाइलिस, कॉपर के लिए दूसरा है पी कॉरिम्बोसा। कॉपर के लिए फिर एक है वेरोनिका कॉर्निया। लीड के लिए है एमॉर्फा कॉनिसिंस। जिंक के लिए वियोला कैलामिनिया। ठीक है, जो भी है आप ये सर्च कर लेना। और देखो इनके रूट में इतना कंटेंट होता है पार्ट्स पर मिलियन में, है ना, पार्ट्स पर मिलियन, ppm। ठीक है, एक पार्ट के मिलियन वेब कंटेंट में, है ना, पार्ट्स पर मिलियन। जैसे 100 होता है ना, 100 को बोलते हैं पार्ट्स पर 100, है ना, परसेंट को पार्ट्स पर 100 बोलते हैं, ये समझ लो। वैसे पार्ट्स पर मिलियन है। ठीक है, फिर देखो ये डू का मतलब है वही है, ऊपर वाला नीचे, सिमिलर। ठीक है, और जीपीस हेमेंडिनोइड्स, एस्ट्रागलस, एलोक्रस। ठीक है, ये है यूरेनियम, सेलेनियम 96, ये उनका कंटेंट है पार्ट्स पर मिलियन में, है ना। तो ये तो हो गया जियोबॉटनिकल क्राइटेरिया। ठीक है, इसके साथ में देखो जो इंडिकेशंस जो हमें मिलते हैं वो मिलते हैं, जैसे एल्यूमिनियम यदि पाया जाता है, स्टबी रूट्स होती है, लीफ स्क्रॉच, मॉटलिंग, ये उनके रूट्स लीव्स में मिलती है। बोरान के लिए, क्रोमियम के लिए, जैसे क्रोमियम के लिए येलो लीव्स विद ग्रीन वेन्स, है ना, तो ये सिग्नेचर हो जाता है। तो कितना शानदार सिग्नेचर है। जरा सोचो कि आप जिस एरिया में घूम रहे हो वहाँ पर इस तरह का सिग्नेचर मिल रहा है, यू कैन प्रेडिक्ट दैट यस समथिंग इज राइट है। जिंक क्लोरेटिक लीव्स विद ग्रीन वेन्स, है ना। यूरेनियम के लिए देखो सब है, अलग अलग डिफॉर्मिटीज पाई जाती है वेजिटेशंस में ड्यू टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ सच एलिमेंट्स। ओके, तो यहाँ तक के सब क्लियर होगा।
अब अगला टॉपिक हम लोग एक्सप्लोरेटरी ग्रिड्स, पिट्स एंड ट्रेंचेस पढ़ेंगे।